Post this, we have the second model or second law, which tries to से नोट करना categorize elements. ये वाला पॉइंट पहले डिस्कस किया है मैंने. जैसे 31 पे हमारे 15 ट्रायड्स जो थे, 5 ट्रायड, 5 into 3, 15 एलिमेंट्स वेर कंप्लाइंग. जो नहीं कंप्लाई कर रहे थे वैसे 16 एलिमेंट्स. ठीक है. जब ये नंबर 63 पर आया, या 31 नहीं था, शायद 41. ठीक है. 1800 में 31 नोन थे, एंड 1864 में we knew 63, और 1830 में समवेयर डाउन द लाइन 40 या 45 के आसपास नोन होंगे. 15 ऐसे थे और 26 ऐसे थे. सो देयर वाज अ डेफिनेट एक्सपेक्टेशन दैट जो नए एलिमेंट्स आएंगे उनमें से कुछ, इनमें से जो एलिमेंट्स हैं ऑलरेडी नोन, उनमें से कुछ एलिमेंट्स के साथ ट्रायड फॉर्म कर सकते हैं. अब यहाँ पर 22 नए एलिमेंट्स आते हैं और एक भी नया ट्रायड नहीं क्रिएट होता है. नो न्यू ट्रायड. No new triad. So this means that the basis of making triad is a faulty one. Otherwise it could not happen कि 60 मतलब 20-22 नए एलिमेंट आए, पता चले हमें, and there is not even a single triad, a new triad which is being created, right? Is it making sense? 30, 56 और 118. हाँ, this could be very good, but क्या इनके प्रॉपर्टीज में भी कुछ सिमिलैरिटीज हैं, या बस नंबर को लेकर के हम बैठ जाएं? That will go काउंटर प्रोडक्टिव. ठीक है. The second one is Newland's octave. Newland's octave. Newland's octave में, so it was a kind of, what should I say, sort of vague idea. Thinking that the properties are going to, I mean, the way sounds, I didn't know that. Good, you know that. Newlands. Okay. Elements increasing mass number, and found that there is a repetition of properties. Properties after gap of 7 elements.
This prompted generalized so minds of hmm. So these were the elements, set of elements, uh, which were known to Newland, and he tried to create that octave thing. ठीक है? सर थोड़ा ऊपर को Hmm. क्या वो स्क्रीन नहीं दिख रहा है आप लोगों को? नहीं सर अपने दिखा वो तो अभी स्टॉप शेयरिंग किया। अभी दिख रहा है? हाँ सर। नहीं सर स्क्रीन ही सर मैं भी वही बोल रहा था कि ऊपर करना ऐसे। सर वो प्रॉम्प्टेड के बाद क्या लिखा है? Prompted him to generalize
ऐसा वाला केस रहेगा ना, अगर ऐसा केस रहेगा सितंबर में 0 पे और मार्च 28 की बात है, आपको है तो आज वो वाले को इंटरेस्ट कर दे, ये क्या करना है तो आपको मेरे पास स्टेटमेंट में आई डोंट noted. Yes, sir. नहीं, periodicity तो पहले ही मिल गई थी ना, ट्राइड में we had periodicity, but was it generalized periodicity? No. Was this a generalized periodicity? No. This wasn't yet a generalized periodicity. There were segmental periodicity. ठीक है, एक सेगमेंट में periodicity हो रही है, there is segmental periodicity. ठीक है, it's not general periodicity. So the octave thing is something like this. This is the first octave. Then 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8वां एलिमेंट, फिर 8वां एलिमेंट, मतलब इसका 8वां एलिमेंट. So it is like this. ठीक है, अब इसमें है क्या कि तो इसका 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 और इसका प्रॉपर्टी सेम है, बट ये जो 8 पर रिपीटेशन आ रहे हैं, दे हैव क्वाइट डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज. हर रो में ऐसा ही हो रहा है, ये तीनों ठीक है, ये बीच में एक आर्बिट आ गया, फिर ये ठीक है, ये आर्बिट आ गया, ये ठीक है, एंड ये आर्बिट आ गया. ठीक है, दैट इज गोइंग टू रिपीट इन एवरी सच रो. So that is Newland's octave law. What are its drawbacks? Its primary drawbacks are the primary drawback of Newland's rule is this was again not accommodative towards new elements which are discovered after the formation of this rule. ठीक है, it was being followed primarily by the lower atomic number या atomic mass elements. ठीक है, higher atomic mass elements के लिए this was failing miserably. lower atomic mass elements के लिए ये generally अच्छा work कर रहा था, but heavier elements के लिए it failed miserably. The more so important thing was the reason for periodicity was not explained. The reason for periodicity was not at all explained. So इसके पहले वाला भी, ये वाला जो point है ना, this is non-accommodative. The rule was non-accommodative. Non-accommodative. That was one point, and the second one is the second common point for all these three of them. ये होगा, एक मेथड लोअर कर्व भी आएगा. The reason for periodicity was, in fact, for Mandel also the reason for periodicity was not explained. ठीक है, मेंडली में फिर भी चलो एक उसने रूल तो दिया था कि पीरियोडिक मासेस, अब वो रूल सही नहीं था, ये अलग चीज है, बट वो रूल के पीछे रीजन क्या था वो उसने एक्सप्लेन नहीं किया था. Why he is formulating that rule was not explained. रूल उसके पास था, इनमें there was no basis of
categorization. There was no coherent basis of categorization itself, or the rule why it is being done was not explained at least. Just because properties which match हो रही हैं, we put them together and said that okay, this is the rule. But no solid theoretical explanation was given for the rule which we were talking about. हाइड्रोजन लिथियम के बाद क्या आएगा? इट्स बेरिलियम. तो बार-बार कट हाँ, करेक्ट. अरे यार, तो उल्टा पुल्टा डला हुआ. हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हीलियम को छोड़ दिया है. ठीक है, चलेगी. सो दैट इज अनदर ड्रॉबैक. कुछ एलिमेंट्स बीच के मिसिंग भी हैं. नोबल गैसेस वे आर नॉट कंसिडर्ड. ठीक है. So hydrogen places. क्या क्या? Hydrogen placing. हाइड्रोजन Placing. हाइड्रोजन हाइड्रोजन स्पेसिफिक का मतलब सर आज के भी इस पे मतलब वो ऐसा अलग ही ये करता है ना, मतलब हाइड्रोजन को. हाँ. सर फिर हम लोग को ऐसा मतलब मैं टीचर से पूछा था कि ऐसा अलग क्यों रहता है. टीचर ने बोला नहीं वो फर्स्ट ही इसमें रहता है. नहीं नहीं, फर्स्ट. उसके दो पोजीशंस हैं. इट इज इन फर्स्ट एंड 17th, दोनों में वो प्लेस्ड है. It does not have a unique position. That is one of the drawbacks of modern periodic table. ठीक है. Drawback from number one was not communicated towards new discovered elements. Second, all the elements all the elements नहीं है. in a particular row do not similar
The third drawback is it works fine for सर इसी आप वाला अटैचमेंट lighter इसी में से बात वाला elements. कमिंग में से बनाने का Feels miserable for media. Lighter elements, whereas space is ready for heavier elements. Fourth one, reason for periodicity was not explained. The reason for periodicity was not explained. Hello. What he did is occupied by one more element. Volume and equilibrium, atomic mass and density. The law atomic volume versus atomic mass quite informative. The elements occupying similar सर ये कहाँ पे लिखना है ये सब? relative position. लोथर मेयर कर्व के अंदर में पॉइंट्स लिखे हैं. हमारे लिए आसान हो Basically, bifurcation में the third bifurcation was by Lothar Meyer कर्व. ठीक है. He has done it in year 1869, working very independently from rest of the world, and he plotted these graphs and he found that the element occupying similar relative position
हाँ पता है नहीं पढ़ाया गया है, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। सारी चीजें 10th में आपको थोड़ी पढ़ा दी जाती हैं। Similar relative position, the elements occupying similar relative position on the curve where having or at least similar properties. Example. Base example is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, all where occupying followed by beryllium, magnesium, calcium. Scandium was missing. इसी कहीं है क्या? नहीं है ना, इसलिए बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्सियम नहीं है. Calcium, strontium, and barium. All were succeeding succeeding the fit. Similarly, chlorine, bromine, iodine, all were receiving receiving ठीक है. So there were significant similarities which has emerged or which has been very effectively found out or can be well depicted. But there were problems also. The biggest problem was to memorize this table or chart. It was quite difficult to remember position of elements uh, or even like where a particular element is going to be placed. That was quite difficult thing to remember. ठीक है? That was one of the first drawbacks of this. Let's note it down. हो रहा है कि नहीं? नहीं, obviously सबके लिए नहीं होएगा. Drawback of Sir, sir. this. क्या हुआ? Periodicity reason था. इसका reason of periodicity. नहीं, इसका भी नहीं है. There is no explanation for periodicity. So, that is again going to be a drawback of this.
The first thing is the position of each element is quite difficult to remember and recall. Is it okay? That was the first thing. The second thing was the reason for periodicity was not explained. The reason for periodicity was not explained. Sir, but we plotted now according to volume, so it should be explained. No? नहीं, the graph cannot graph is not explanative ना. Graph is only showing कि हाँ that there is correlation between the two. The atomic volume versus atomic weight, that is density, has some relation with the properties, but how is it related, that is not being answered. Graph itself cannot explain the thing ना. अब density properties के साथ कैसे related है, इसके लिए reason होना चाहिए ना. There should be a reason behind it. यहाँ हम खाली ऐसे बोले कि हाँ डेंसिटी जो है ये सॉरी स्पेसिफिक डेंसिटी, इट्स नॉट डेंसिटी, इट्स स्पेसिफिक डेंसिटी. Volume by atomic mass is going to mass by volume is going to give us density, and volume by mass is going to give me a specific density. तो specific क्या है? Inverse of density. तो specific density जो है वो मुझे क्या बताएगा और वो properties को कैसे explain कर रहा है, that itself is not clear or it has not been explained at all. There is no point related to this. या हम ये मान लें कि ये inherent properties हैं या intrinsic property है density की. अगर intrinsic property है तो कुछ जगह पर इसको fail नहीं करना चाहिए, right? जो चीजें intrinsic properties होती हैं वो कहीं पर भी fail नहीं करेगी. Am I making sense? Internal behavior को अगर कोई इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी गाइड कर रहा है और वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हमने एक्सक्लूसिवली पकड़ लिया तो उसके अकॉर्डिंगली अगर चीजें हम प्लॉट करेंगे तो ऑल द एलिमेंट्स शुड और मस्ट हैव फॉलोड इट. द ट्रेंड शुड हैव बीन फॉलोड बाय ऑल द एलिमेंट्स. देयर शुड नॉट हैव बीन एनी एक्सेप्शन. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर. ठीक है, अगर कहीं पर भी कुछ भी एक्सेप्शन हो रहा है मतलब वी हैव नॉट कॉट द राइट कॉर्ड. सर बोलिए. सर इफ वी टुक एटॉमिक, अगर उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम के जगह पे कोई और ही टर्म ले लिया होता तो फिर सर वो मिसमैच हो जाता ना. ऑब्वियसली मिसमैच होता. हाँ. और उसने ऐसा थोड़ी था कि सीधे एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का इंसेप्ट ड्रॉ किया. उसने अलग अलग पैरामीटर्स को ट्राई किया, बाकी सारे में मीनिंगफुल चीज नहीं मिल रही थी, इसमें मीनिंगफुल चीज मिली और मीनिंगफुल चीज मिला तो फिर उसको इसने ही पुट इट एज अ दिस थिंग. यहाँ पर ये जो मिनिमा पोजीशन ऑक्यूपाई किए हुए हैं हर जगह पे कर्व के, ठीक है,
These are the elements which are having multiple or variable valencies. ठीक है? But let me just see the कौन machine कौन has से का, जैसे किसका किसका, जैसे आयरन का +2+3 है, तो यहाँ पर किसका +2+3 है, क्या उसी वाले पोजीशन को आयरन भी ऑक्यूपाई कर रहा है? या फिर हम दे सकते okay. So the point was, the negative point was, clustering of variable valency elements could be taken as a positive attribute of this classification. ठीक है? But at the same time, is it like iron which has +2 and +3 variable valency, and cadmium which is again having +2 and +3, are they positioned exactly at the same position on the curve? No. ठीक है? Iron is positioned somewhere with silver. Am I making sense? Which does not have variable valence. या फिर रुथेनियम रोडियम के साथ, नहीं, रुथेनियम रोडियम के जस्ट पहले थोड़ा सा. सो अगर माइक्रो लेवल पर हम देखते हैं तो इनके पोजीशन और इसके पोजीशन में डिफरेंसेस है रिलेटिव पोजीशनिंग में. प्रॉपर्टी सिमिलर है बट पोजीशनिंग में डिफरेंस आ गया. तो that is one of the drawbacks. We are taking it as a drawback. ठीक है? Okay. क्लियर है? थर्ड वन है. सर मुझे वो, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. हाँ सर बोलिए. मैंने वो पीक के बाद कुछ नहीं लिखा. सर बोलिए ना. सर वो माइक्रो मतलब कि खाली थोड़ा थोड़ा माइक्रो स्पेसेस से ही वो वेरी कर रहा है ना? हाँ. सर फिर मतलब कि हम लोग उसको निग्लेक्ट क्यों नहीं करते हैं? अरे नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी नेग्लेक्ट इट? सारा गेम तो पोजीशनिंग का है, सेम पोजीशन पे होना चाहिए, राइट? अब थोड़ा इधर और थोड़ा उधर हो जाए, जैसे हम ये बोलें कि ऑक्सीजन वाले टेबल में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम है, तो इधर से फास्फोरस वाला भी जो है वो इस तरह के प्रॉपर्टी शो करने लगे. दैट इज ऑब्वियसली इट्स एन ऑकवर्ड थिंग, राइट? या फास्फोरस इसके नीचे आ जाए, सल्फर एक आगे चला जाए, और ऐसे हम बोले कि ऐसे ऐसे हो रहा है मैचिंग, तो दैट इज समथिंग ऑकवर्ड. या यहाँ पर ऐसे हो रहा है फिर जिगजैग होने लगे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक अ कोहेरेंट सेंस ना. और यहाँ पर ये है कि रिलेटिव पोजीशनिंग जो है of elements showing similar traits or similar properties should be same. That is the idea. अब ऐसे में अगर deviations हो रहे हैं तो that has to be taken or accounted as a negative of that model. इग्नोर तो कर ही सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? एक्सेप्टेड रहता तो इग्नोर्ड ही रहता. मेकिंग सेंस? अगर ये एक्सेप्टेड, जैसे अभी हमारा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज या हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं है. काफी सारे लोग बताते ही नहीं है उसको, उनको पता भी नहीं होता है कि उसका पोजीशन फिक्स नहीं है. हर पीरियोडिक टेबल में वो फर्स्ट ग्रुप पे दिखता है. रियलिटी में अगर ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल देखा जाएगा तो उसमें वो फर्स्ट पे भी दिखेगा और 17th पर भी दिखेगा. देयर आर 2 पोजीशंस फॉर इट. ठीक है? अभी देखो तुम लोग को एक मैं भेज देता हूँ, मतलब एक बुक, फिर किसी को भी निकाल करके देखोगे ना, फर्स्ट एंड 17th दोनों पर वो रहेगा. एक मिनट रीजन मुझे लिख लेने दो, आई विल शो दैट.
मेरे फैमिली चलो जो लग जाएगी और लग जाएगी आपके कोई हमेशा तो मैं फिर और मारूंगी आपको मैं पहले आपको फोन कर दूंगी ठीक है. The fourth one was Mendeleev. Mama is Priority table. He was the first one to give the first periodic law. And that is his uniqueness. He copied it, get it from चलो मैं भी उधर जा रही हूँ उधर क्यों आ रही हो चलो खाना खिला दूँ आपको चलो बेकार राइस कौन खाएगा मेरा बच्चा आजा मैं खाऊंगी लेकिन आप नहीं मैं आद्या प्लीज आद्या मम्मा करती है प्रॉमिस तो आप भी मेरे से 1000 करते हो अच्छा बच्चा बन के रहने का आप 1000 में से एक प्रॉमिस रखोगे ना तो मैं ना 1000 में से 999 प्रॉमिस रखूंगी wait. खाली मेरे से तुम रिश्तेदारी कर नहीं सिर्फ गंदा बस वो खाना नहीं खाना खाना निकालने का ऐसे क्यों कर रही हो लेकिन आप मैंने बोला ना होगी खाना खाओ पहले अभी ना थप्पड़ मारूंगी खींच करके कितना की कहां से खून आ जाएगा सुनाई देता नहीं है मेरा बात को लेकिन आप चालू हो जाता है इनका मैं बिल्कुल सुनना नहीं चाहती हूँ क्या किए क्या ट्राई क्या ट्राई की हमें
of an element are periodic function periodic function of the atomic masses. It was first time that he claimed that, didn't prove it, but he claimed that the properties of an element are intrinsic behavior of atomic masses. ठीक है? Every element का जो atomic mass है, that is the key reason behind the properties, and therefore it is this mass which is the reason for repetition of the properties. ठीक है? It is going to happen after a fixed interval or some interval, and he was able to gather those intervals and plotted them accordingly. So his periodic law was quite clear. The reason for periodicity was documented, though not explained, but yeah, at least we have something which we can say that we are assuming something as okay. The law might not be, I mean, the explanation might not be right, it may be wrong, but we at least had some or he at least had some explanation regarding the periodicity. Okay? For him, the periodicity was because of the masses, because properties of the elements are because of their masses. ठीक है? सही है गलत है, that is going to be proven in due course of time, but at least for him it was like that, that the properties of elements are guided or are due to the atomic masses of the elements. Is it okay? Hello? Yes. Yes, sir. Okay. Next thing is, he has divided his table into periods and groups. ठीक है? These were the period, first period, second, third, fourth, fifth, sixth, and then there were two parts or groups. ये ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप के दो डिविजन्स थे. ठीक है? हर ग्रुप के दो डिविजन्स बनाए हुए थे. So it has 8 groups. 7 groups were having 2 divisions, A division and B division. So it was like group 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, and then we have 8th group. ठीक है? एलिमेंट्स को जो उसने बाइफरकेट किया है, ग्रुप ए में एलिमेंट्स को डाला है और कुछ एलिमेंट्स को ग्रुप बी में डाला है. एक्चुअली उसने डाला है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है? व्हाट ही हैज डन इज प्रॉपर्टीज एक टेबल पे एक फ्लैश कार्ड पे लिख करके सारे एलिमेंट्स के फ्लैश कार्ड पे प्रॉपर्टीज और उनके मासेस को रखा उसने, एंड ही स्टार्टेड प्लेसिंग. ये ब्रॉडर टेबल बना दिया उसने एंड ही स्टार्टेड प्लेसिंग. सो व्हाट ही फाउंड इज कि यहां से जाने के बाद 8 एलिमेंट के बाद या 10 एलिमेंट के बाद हमको कॉपर मिलता है. उसमें कुछ प्रॉपर्टी जो है, स्पेशली जैसे वो कंपाउंड्स फॉर्म कर रहा है, ऑक्साइड या हाइड्राइड. ठीक है? तो इसने जो प्लेस किया था पहली बार, कि देखो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के बेसिस पर प्लेस किया था. अगर सारे ऑक्साइड्स अगर ऐसे फॉर्म के बन रहे हैं तो दे हैव बीन प्लेस्ड टुगेदर. हाइड्राइड्स RH नेचर के ये बना रहे हैं, ये सारे एलिमेंट RH एंड R2O टाइप के कंपाउंड बनाएंगे. ऑक्साइड R2O एंड हाइड्राइड RH फॉर्म का. ठीक है? ये सारे के सारे +1 वैलेंसी +1 वैलेंसी +1 वैलेंसी एंड +3 दोनों रहता है. तो इनके हाइड्राइड्स जो है एक
तरह के होंगे, ऑक्साइड्स एक तरह के होंगे। मेकिंग सेंस? और इसी की वजह से इनको ग्रुप 1 में प्लेस किया है उसने। बट अगेन व्हाट ही सॉ इज कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज इनसे नहीं मिलती है। दो इनकी वैलेंसी एक है, कंपाउंड एक तरह के फॉर्म कर रहे हैं, बट इनका रिएक्टिविटी जो है या टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट्स इज नॉट सेम। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है इनका ये काफी डिफरेंट है फ्रॉम दीज। ये जो है बहुत रेडियली रिएक्ट करते हैं, इनको रिएक्ट कराने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, इफ आई एम ट्राइंग टू फॉर्म एन ऑक्साइड by hitting copper with oxygen or silver with oxygen or gold with oxygen, I have to do a lot of work. Is it making sense? And therefore he created a divide in the group itself. क्योंकि उसका ये था कि प्रॉपर्टीज कंपाउंड जो फॉर्म हो रहे हैं वो तो एक टाइप के हो रहे हैं, so they should be placed in a single group. But प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही है, रिएक्टिविटी का रेट एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है, सो देयर शुड बी इंटरनल डिवीजन इन द ग्रुप इटसेल्फ। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई ही क्रिएटेड टू कैटेगरीज इन ईच ग्रुप। ठीक है, अब जिस जगह पे, जैसे काफी जगह ऐसे थे जहां पर उसने कोई एलिमेंट को नहीं डाला था क्योंकि तब वो एलिमेंट था नहीं। ठीक है, later on it happened that we were able to discover those elements and almost जो predicted atomic mass line थी उसकी, या जो वो उसने predict किया था कि इस रेंज में रहना चाहिए, उसी रेंज में हमारा न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट जो था उसका ये था, क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। Am I making sense? Yes, sir. ठीक है, सो ये बेनिफिट्स या ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स या फीचर्स थे मेंडलीव टेबल के। सो जो पुराने टेबल्स थे उसमें क्या क्या मिसिंग था? पहला, पीरियोडिसिटी लॉ नहीं था कोई भी, वेदर राइट और रॉन्ग, दैट वाज सॉल्व्ड। नन ऑफ देम वेयर ये अकोमोडेटिव टुवर्ड्स न्यू डिस्कवरीज एक्सेप्ट लोथर मेयर। ठीक है, कर्व, लोथर मेयर कर्व सिर्फ इकलौता था जो कि अकोमोडेटिव था, बट उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसको याद नहीं रख सकते थे इतनी आसानी से। इसमें क्या हुआ, ये अकोमोडेटिव भी है, खाली स्पॉट छोड़ दिया उसने, और कोई आ रहा है तो अपना पीरियड हम बढ़ाते जाएंगे एंड वी कैन अकोमोडेट देम। इनफैक्ट वी डिड दैट। ब्लैंक स्पेसेस जो उसने अज्यूम करके छोड़ा था कि यहाँ का कोई एलिमेंट मिसिंग है, इनफैक्ट सम ऑफ दोज एलिमेंट्स वेयर फाउंड विदिन फ्यू इयर्स। लाइक जब ये प्रपोज किया उसने, उसके 10-15 साल के अंदर में 2-3 वैकेंसी जो थी वो फिल हो गई। सो दिस टेबल वाज क्वाइट अकोमोडेटिव। ठीक है, तो ये 3 की पैरामीटर्स पर दिस टेबल वाज लाइक डूइंग फैबुलसली गुड। ठीक है, बट ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, जैसे इन तीनों को एक ही ग्रुप में प्लेस किया हुआ है हमने। मैंडलीव ने आयरन, कोबाल्ट, निकल को तीनों को एक साथ एक ग्रुप में प्लेस किया हुआ है। अब एक ही ग्रुप में तीनों कैसे रह सकते हैं, राइट? क्या तीनों के बिहेवियर हर तरीके से सेम है? नहीं है, क्योंकि आयरन कोबाल्ट +2 +3, निकल का +2 +3 होता है, निकल +2 +3 नहीं होता है, कोबाल्ट 1 and 3 होता है, और आयरन 2 and 3 होता है। इज इट ओके? आयरन +2 +3 होता है और कोबाल्ट का +1 +3 रहता है स्टेबल। ठीक है, तो वेरिएबल वैलेंसी तो होती है, बट एग्जैक्टली सेम वैलेंसी तीनों एलिमेंट्स की रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है, एंड दैट इज वेयर द डिफरेंसेस अराइजेस। नाउ डिफरेंसेस अगर अराइज किया बट दे आर स्टिल पुट प्लेस्ड in same column or in same period, that means that's not right. Yes, isotope placing was also there a concern. Hydrogen ka placement was a concern. Isotopes, should it be given other positions, that was another concern.
So there were concerns, there were some merits to it. I have briefly discussed the merits. इसका notes मैं next lecture में आप लोगों को देता हूँ, ठीक है? सर बेरिलियम का मास भी उसमें मतलब करेक्ट रहता है, क्या क्या? बेरिलियम के मास को भी करेक्ट रहता है। हाँ, मास करेक्शन भी पुराने काफी सारे एलिमेंट्स का किया था इसमें, नो डाउट। कुछ एलिमेंट्स का मास करेक्शन किया था, दैट इज अनदर गुड थिंग अबाउट इट। सर बोलो। सर आपने मतलब ये सब पॉइंट्स के पहले एक पॉइंट बताया था कि वो कॉपर और निकल का एक ही इसमें कंसर्न। कॉपर और निकल का एक ही में मतलब सर अभी इसके पहले बता रहे थे ना कि वो कोबाल्ट और निकल एक साथ में, आयरन हाँ कोबाल्ट सर निकल, हाँ। वेरिएबल वैलेंसी सबकी होती है, इसका +2 +3 स्टेबल होता है, इसका +1 +3 स्टेबल होता है। निकल का ध्यान नहीं है, निकल का +2 +3 इसका भी रहता है। तो अभी पॉइंट ये है कि ये एक साथ प्लेस्ड है, लेकिन इनके अंदर में वैलेंसी जो है वो अलग अलग है। तो अलग अलग वैलेंसीज अगर इनके अंदर में है, जैसे ये 2 3 है और ये 1 3 स्टेबल है। कोबाल्ट जो है, एक सेकेंड कर लो, कोबाल्ट +1 and +3 में स्टेबल होता है। जस्ट चेक इट। देखो, आयरन और कोबाल्ट जो है ये दोनों +2 +3 दोनों शो करते हैं और दोनों में स्टेबल रहते हैं। निकल जो है उसका जो है वो सिर्फ +2 जनरली अवेलेबल रहता है, ठीक है। आयरन और कोबाल्ट दोनों +2 +3 है, निकल का सिर्फ +2 है। नाउ जो कि स्टेबल रहता है, ऐसा नहीं है कि वहीं सिर्फ रहता है, वो स्टेबल रहता है। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड निकल के +2 स्टेट वाले रहते हैं। So now the point is, why is it so happening? If they are placed together in same group, they must have similar this sort of properties. ठीक है? They cannot have different properties. सर No, सर nothing. इसका बोलिए, बोलिए। सर इसका मतलब ये हुआ ना